I'm starting. All the best. प्रियंका, वो शीट का नाम क्या है रे, जिससे हम लोग वो मैसेजेस लेते हैं? Hello, everyone. A very warm welcome in today's session. My name is Sakshi Mishra, and I'm your host for today. Can you all hear me and see me? Can you all please drop a yes on the chat box? If I'm visible and audible, everyone? A yes on the chat box? Am I audible clearly, everyone? Okay, super. I can see a lot of yeses on the chat box. Great. So, hello everyone. A warm welcome on today's live masterclass. Thank you for coming here and sparing your Saturday evening for your health. So, before I move ahead, I would quickly like to introduce myself. My name is Sakshi Mishra, and I am a nutritionist by profession. So, and I'm also a certified diabetes educator. So, my expertise is in dealing with patients who've had diabetes in the past. So, diabetes and rather all, all sorts of chronic conditions. So, something like cholesterol, BP, etc. And that's why I'm here to share my, tips, etc. with you so that you can take that away from here and use it in your diabetes management. Okay, so also before I begin, I would quickly like to congratulate each one of you who have spared your Saturday evening and taken that first step towards your health. And I'm glad to see so many participants in the masterclass today. So once again, a very warm welcome. And with this, we will start our today's
masterclass. So before I begin, I would like to take you through a small poll, which is like I want to understand that where exactly do you come from. So I want to understand that does your family or caregiver have to persuade you to remind you to take your medicines? So there's a like a three options in front of you. There'll be a poll you'll see on your screens which says yes all the time, yes on certain occasions, no, I manage it on my own. So I would request all of you to please tick the correct answer that you think is according to you, for you, and click the submit button. So the question is very simple. Does your family members or any of your friends, etc., have to persuade you or have to give you timely reminders to take your medications? So, what do you think is the most appropriate answer according to you? Yes, all the time. Yes, on certain occasions. No, I manage it on my own. Whatever you think is right, please tick that answer and click on submit so that we receive all your answers and we can show you your poll. Perfect. We've received all your answers. Let us see. Okay, fantastic. 80% of people say that no, I manage it on my own. And 13% say yes, and 7% say yes sometimes, like on certain occasions. So that's nice, which means that about 80% of people are self-sufficient and they do not require reminders. So that's nice. There's no correct or wrong answer in this. It's just that I wanted to understand that how many of you actually require reminders. So which means that about 20% of you require reminders and 80% do not. So that's great. So good job for the 80% people. And for the others, we have ways to help you how to go about. Okay, so thank you for sharing this. Let us move ahead. On the same lines, I would like to take you to another poll which says on how many occasions have you missed taking your medications in a month? So in a month's time, how many times do you miss taking a medication? Is it more than once a month, more than twice a month, more than thrice a month, more than 4 times a month? So what do you think is the correct answer? You'll again see a poll on your screen. You have to pick the correct answer from the poll. Okay, there are 4 options: more than once a month, more than twice a month, more than thrice a month, and more than 4 times a month. What do you think is the correct, the most appropriate answer according to you? How many times do you miss taking your medications in a month? You can select the most appropriate answer and click on submit. Do not forget to click on submit button. Okay, we've got the answers in front of us. 53% of people say that more than once a month. Okay. 33% say more than twice a month, and 7% say more than 3 and more than 4 times, which is a fairly good number. However, we have to understand that missing medications also has its own complications. We are going to discuss about a few as we move ahead. But thank you so much for sharing this. Now I know my audience better and I know where do you exactly require help. So that's the reason I wanted to understand this. Thank you so much for sharing this. We've received your answers and it looks fairly good. It does not look bad. So that's nice. On the same lines, we'll move ahead and we will first understand that why is it very, very important to stay glucovigilant during such times. So we know that during COVID times, we've been dealing with this entire COVID pandemic since almost a year now. And we have now come to a situation wherein we know that people who have chronic conditions like diabetes, etc., in the past are more prone to get COVID. उनको इस तरीके का कोई भी बीमारी होने का चांस ज्यादा होता है because their immunity is a little compromised. इसके लिए ऐसे समय पर
बहुत ज्यादा ग्लूकोविजिलेंट यानी कि आपके ब्लड शुगर्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके आजकल के समय में जब कोविड इतना ज्यादा स्ट्रांगली फैला हुआ है, राइट? सो व्हाट वी हैव डन फॉर यू इज वी अंडरस्टैंड कि डायबिटीज का, ब्लड शुगर्स का ध्यान रखना इज नॉट दैट इजी, एंड इसके लिए हमने पूरे डायबिटीज मैनेजमेंट को छोटे छोटे पिलर्स में ब्रेक किया है, एंड वी आर गोइंग टू शो दोज पिलर्स टू यू. And it is definitely not just taking timely medications. बहुत कुछ आता है diabetes management में. We are going to talk about each of them and let us see that what exactly are you doing and what not. So if you're not doing it, अब से आप करना उसको चालू कर सकते हैं, right? So are you all excited to know about the pillars of diabetes management? Can you drop a yes on the chat box if you all are excited to know about the pillars of diabetes management, everyone? Okay, I can see a couple of yeses on the chat box. Fantastic. I can already see a couple of yeses. Great. So now that all of you are excited, even I am excited to tell you about these pillars. So basically, these are the pillars of diabetes management. These are the 6 important pillars. The very first pillar is education. Over time, we've noticed that patients जिनको पता होता है कि उनके बॉडी में डायबिटीज की वजह से क्या हो रहा है, when they have that knowledge, usually they manage their diabetes in a much better manner as compared to somebody जो कि ignorant है और जिनको नहीं पता कि उनके बॉडी में क्या हो रहा है, right? तो इसके लिए डायबिटीज एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, and that's the very first pillar. Okay, moving on to the second pillar, that is healthy eating. कब क्या खाना है, कितना खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग फॉर यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे डायबिटीज मैनेजमेंट का, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू ईट इज अबाउट 50 to 60% ऑफ योर डायबिटीज मैनेजमेंट. तो बाकी का डिपेंड करता है आपके दवाइयों पर एक्सेट्रा, बट एटलीस्ट 50% डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, व्हाट इज योर डाइटरी पैटर्न. So that is a very important pillar. Okay, moving on to the third pillar, which is being active, that is physical activity. That is a very important pillar. आप कब कितना एक्सरसाइज करते हैं, कौन से तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, आपके ब्लड शुगर्स के लिए कौन से तरीके की एक्सरसाइज बेस्ट है, ये जानना बहुत जरूरी है. जैसे कि आप ये जो थर्ड पिलर है बीइंग एक्टिव का, उस पर भी you can lead that pillar and you can manage your diabetes. Fourth and very important pillar is blood glucose monitoring and maintaining the records. तो अपना ब्लड ग्लूकोज रेगुलरली चेक करना और उसको रिकॉर्ड करना, जैसे कि आपको पता रहे कि क्या डिफरेंस आ रहा है आपके शुगर्स में. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है. बहुत सारे लोग ये नहीं करते. दे फोकस ऑन देयर डाइट, दे फोकस ऑन देयर फिजिकल एक्टिविटी, बट दे डू नॉट फोकस ऑन चेकिंग देयर ब्लड ग्लूकोज. ब्लड ग्लूकोज कभी कदार 6 महीने में एक बार अगर चेक किया आपने, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो 6 महीने में आपने जो किया वो आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. रेगुलरली ब्लड ग्लूकोज चेक करना बहुत जरूरी है. Okay, moving on to the fifth and sixth pillar, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, that is taking medications including insulin and reducing risk. ये 2 पिलर्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है डायबिटीज मैनेजमेंट. So let us start with educating ourselves on how to take timely medications and reduce the risk of diabetes, because diabetes is a progressive condition. जितना पुराना हो जाता है आपका डायबिटीज, उतना रिस्क बढ़ जाता है. इसके लिए आपके ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है. सो लेट अस सी हाउ डू वी डू दैट. ओके, सो व्हाई इज टेकिंग मेडिकेशंस ऑन टाइम इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हेल्प्स यू टू कीप ब्लड शुगर इन कंट्रोल. ऑफ कोर्स, दवाइयां जो आपको मिलती है वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए मिलती है. इसके लिए टाइम टू टाइम दवाई लेना बहुत जरूरी है. सेकेंडली, इट अवॉइड्स द चांसेस ऑफ सडन हॉस्पिटलाइजेशन. कभी अगर आपका ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया या बहुत ज्यादा कम हो गया, ऐसे केस में कभी हॉस्पिटलाइज किया जाता है पेशेंट्स को. ये चीजें अवॉइड करने में अगर आपने दवाई बराबर से ली तो ये सारी चीजों की नौबत ही नहीं आएगी, एंड यू विल बी एब्सोल्युटली सेफ एंड यू विल नॉट गेट इनटू एनी ऑफ दीज थिंग्स, राइट? तो इसके लिए दवाई टाइम से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स लोअरिंग योर रिस्क फॉर फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दवाई टाइम से ले, जैसे कि डायबिटीज से रिलेटेड जो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको फ्यूचर में जाकर ना हो. ओके, ऑन द सेम लाइंस हमने बहुत नोटिस किया है कि जब डायबिटीज की दवाई की बारी आती है
तो बहुत से पेशेंट्स को, लाइक आई कीप डीलिंग विद पेशेंट्स डे इन एंड डे आउट, एंड आई हैव नोटिस्ड कि बहुत सारे पेशेंट्स ये रीजंस देते हैं डायबिटीज की दवाई ना लेने का। ये ऑब्स्टिकल्स या ये बैरियर होता है दवाई लेना या नहीं लेने का। So the very first barrier and the most common thing that I hear is forgetfulness, भूल जाना कि मुझे ये टाइम पे दवाई लेना था, मैं भूल गया, मैं काम में था और मैं भूल गया, या मैं खाना बना रही थी और मैं भूल गई, या I was in my job and I forgot to take the medication. That's the most common reason we hear from our patients. Second reason is that a lot of patients do not take them correctly, like they take it at the wrong time or not the right dosage. जैसे अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये दवा सुबह लेना है, तो आपको अचानक से आपको रात में याद आया तो आपने रात में वो दवाई ली, या समझिए कि आप 2 दिन भूल गए थे दवाई लेना, आपको तीसरे दिन याद आया तो आपने तीनों दिन की दवाई साथ में ले ली। ये करना भी बिल्कुल गलत है, you should not do this. A lot of my patients tell me about this and I strictly tell them to not do this. ये गलत है, ये रिस्क में डालता है आपके डायबिटीज मैनेजमेंट को। ओके, थर्ड इज अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट्स। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे वॉमिटिंग या कोई आफ्टर टेस्ट आना, सर में दर्द होना, फीवर वगैरह। तो कोई लोग ये साइड इफेक्ट्स की वजह से भी दवाई लेना अवॉइड करते हैं। किसी का रीजन होता है कि बहुत सारी दवाई है अलग अलग टाइम पर, तो मुझे याद नहीं रहता, मल्टीपल मेडिकेशंस टुगेदर, सो दे फॉरगेट टू टेक इट। एंड देयर इज वन मोर ऑब्स्टिकल जो बहुत इंटरेस्टिंगली हमें पेशेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ नहीं आती, या डॉक्टर ने क्या बोला था वो मैं भूल गया, डॉक्टर की डायरेक्शन समझ में नहीं आते, क्योंकि आप डॉक्टर से सिर्फ 10 ही मिनट के लिए मिलते हैं, उसमें डॉक्टर ने जो बोला वो टाइम पे हम हाँ कर देते हैं, और शायद क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद हम उसको भूल जाते हैं, राइट। सो ये कॉमन ऑब्स्टिकल्स है जो कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ने हमें बताया है, एंड वी रियली वांट टू आइडेंटिफाई द बैरियर्स कि ठीक है यही बैरियर है, तो हम इसको कैसे तोड़ें, व्हाई इज दिस बैरियर कमिंग इन द वे ऑफ आवर पेशेंट्स, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उसको तोड़ना जरूरी है, जिसमें कि आज मैं आपकी मदद करने वाली हूँ। सो व्हाट कैन यू एग्जैक्टली डू टू ब्रेक दीज बैरियर्स? छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। आई एम गोइंग टू शेयर 4 कैटेगरीज ऑफ चेंजेस दैट यू कैन डू टू मेक श्योर कि आप एक हेल्दी हैबिट बिल्ड करें दवाइयों से लेकर। ओके, दवाइयों से रिलेटेड आप एक हेल्दी हैबिट बिल्ड करें ओवर टाइम, जिनमें से ये 4 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले है मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन। मेक इट ऑब्वियस का मतलब होता है कि इन साइंस वी टॉक अबाउट स्टैकिंग 2 हैबिट्स टुगेदर, जिसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज भूल जाते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप वो करना भूल जाते हैं, तो उसको आप ऐसे कोई चीज के साथ करिए जो कि आप डेली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई दवाई लेनी है सुबह के समय खाली पेट, ओके, तो आप ऐसी आदत बनाइए कि आप जैसे ही यू ब्रश योर टीथ, जैसे ही आप ब्रश करेंगे तुरंत उसके बाद आप वो दवाई लेंगे, क्योंकि ब्रश करना तो आप मिस नहीं करेंगे, राइट, दैट विल बी अ रेगुलर थिंग। तो अगर आपने इस हैबिट के साथ अपनी दवाई की हैबिट को जोड़ दिया, स्टैक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आप दवाई लेना भी नहीं भूलेंगे। ओके, आप दवाई की हैबिट किसी चीज के साथ भी स्टैक कर सकते हैं, जैसे कि आई विल टेक माई मेडिकेशंस आफ्टर आई कम फ्रॉम अ शावर, or I will take my medications after I come from the walk, or I will take my medications before brushing my teeth. जैसा भी आपको सही लगे, जो भी आपका सही टाइम है दवाई लेने का, this is a very important thing you can do. Combine it with a habit that you do every day. आप खाना डेली नहीं भूलेंगे, ब्रश करना, नहाना, पानी पीना, ये सारी चीजें ऑब्वियस है जो आप डेली बेसिस पे करते हैं। Stack your medication habit with something of this sort, जैसे कि आप इसको लेना डेली बेसिस पे ना भूलें। This is the very first tip that I give to a lot of my patients. Secondly, design your environment to make it more visible around you. आप उसको जितना ज्यादा विजिबल बनाएंगे उतने चांसेस कम हो जाते हैं कि आप ऐसी कोई चीज को भूलें। जैसे सबसे पहले अगर आपको दवाई आपको खाने के बाद लेनी है, तो कीप दैट दवाई का डब्बा, कीप इट ऑन द डाइनिंग टेबल, या कीप इट एनीवेयर वेयर यू सिट एंड ईट फूड। जहां पर आप खाना खाते हैं वहीं पे पास पे उसको रखिए। डोंट कीप इट अंडर योर इनसाइड योर कपबोर्ड इन वन ऑफ द ड्रॉवर, वरना आप उठ के वहां जाना भूल सकते हैं। सो मेक इट मोर विजिबल। साइंस ऐसा कहता है कि जितना आपको दिखता है ना, आपके दायरे में जितनी चीजें दिखती हैं वो आप पहले करते हैं, जो नहीं दिखता दैट इज अ सेकंड प्रायोरिटी।
So if you want to take medications, you want to make it your first priority, keep it in your vicinity. Don't keep it somewhere inside or you'll forget it. Okay? You can also post notes about it on your mirror, on your refrigerator, etc. You can also put up like a board wherein you have reminders of your dosages, timely medications. जितना ज्यादा आप उसको विजिबल बना सकते हैं उतना विजिबल बनाने की कोशिश करिए. Secondly, make it attractive. How do you make it attractive? You can use a pill box. So for example, एक pill box आता है, आप में से कई सारे लोगों को already पता होगा, जो कि day wise होता है, Monday, Tuesday, Wednesday, ऐसे करके पूरा pill box होता है, जहाँ पे उस दिन की सारी दवाइयाँ आप एक साथ उस box में रख सकते हैं. So if you have all your medications together at one place, आपको हफ्ते में एक बार वो दवाई के डब्बे भरने होंगे, and you are sorted for the entire week. And having medications from that pill box also becomes a little easy. You don't have to remember कि आज कौन-कौन सी दवाई लेनी थी, कल कौन-कौन सी दवाई लेनी थी. So you can actually use a pill box. Secondly, use an app. So like a smartphone app, आप लोग सब Wealthy use करते हैं already. Wealthy Care का app आप already use करते हैं. ये एक smartphone application है जो कि आपको मदद करता है reminders वगैरह रखने के. So you can use your smartphone, you can use an application to set reminders कि अभी ये दवाई लेनी है, अभी ये दवाई लेनी है, क्योंकि हमारा मोबाइल पूरे समय हमारे साथ रहता है. So if you set up a reminder in an app or you set up a reminder on your smartphone, you will not forget taking the medication. Secondly, make it easy. Don't make the taking medication concept very complicated. आपके दिमाग में दवाई खानी है करके अरे यार ऐसा वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए. It should be very easy. So first of all, drink water. Don't make the unpleasant taste या जो भी after taste होता है, don't let it dilute in your mouth. Don't let that happen. Don't let that tablet choke in your throat. Don't let that happen. Make this entire thing easy. Drink ample amount of water after you take your medications. Not a lot and not less. It should be more, like it should be enough. It should not be more, it should not be less. Secondly, get support. कि जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जिसके साथ भी आप रहते हैं, उनसे सपोर्ट लेने की कोशिश करिए. तो अगर आपको ऐसा आप भूल जाते हैं या बार बार there's a tendency कि आप दवाई भूल जाते हैं, make it a point to take support from somebody. Tell your husband कि मुझे ये दवाई लेनी है, मुझे याद दिलाना, या tell your wife about it, tell your children about it. Make it more visible to everybody that you are bothered to take that medication, so that they will also keep reminding you कि आपकी दवाई का टाइम हो गया, right? So there's no chance that you will forget it. Of course, keep an up-to-date list of your medication names, strength, dosages, so that there's no confusion, right? आपकी जो भी प्रिस्क्रिप्शन है मेडिकेशंस के, उसका एक अच्छा बड़ा प्रिंट कर लीजिए, जैसे कि कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी दवाई कब लेनी है वगैरह वगैरह. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा मेडिकेशंस कैरी करें. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कोई और सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं या आप कोई और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पर आप जो दवाई ले रहे थे वो ना अवेलेबल हो. ऐसा कभी कभी हो सकता है. सो डोंट लेट दैट हैपन, अदरवाइज आपका जो डोसेज है या आपका जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा. In fact, it's better to carry extra medications with you whenever you're traveling. This is another way you will not give yourself an excuse to miss your medications. Also, you can tell your doctor to make it very flexible for you, so that he can give you a couple of options. So for example, अगर ये दवाई available नहीं है तो मैं ये दवाई ले सकता हूँ क्या? Ask your doctor about it, और tell him to give you some options कि ठीक है मैं अभी ये ले रहा हूँ, पर अगर ये नहीं available है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, या अगर मैं ये लेना ये टाइम पे भूल गया तो मुझे ये कब लेना चाहिए. Make it flexible for you by talking to your doctor. Instead of self-medicating, talk to your doctor about it. He will be very happy to give you options to not forget it. Right? Also, like I told you, get help from your family members and friends to remember about medications. Make it satisfying. So you can actually use an app जहाँ पे आप हर एक दवाई लेने के बाद आप उसको tick off करें, जैसे कि it becomes satisfying to you कि अच्छा आज मेरा दिन में से 5 में से 4 हो गया, सिर्फ एक ही बाकी है. Make it as satisfying and as rewarding for you, so that taking medications is not a big task. It becomes easy for you, right? So now I would want to understand from you. मैंने आपको कुछ tips दिए, about 7-8 tips दिए to remember taking your medications in time. So do you feel more confident on taking medications in time? If yes, there's a poll in front of you. You feel very confident, you are confident, you are somewhat confident, or you're not confident at all. आपके सामने एक पोल है. मेरी ये एडवाइस या मेरे ये टिप्स सुनने के बाद, what do you think? Where exactly do you lie? Very confident, confident,
somewhat confident, not confident. क्या लगता है आपको? Tick on the option that you think is correct and click on the submit button below. Confidence in taking medications after what I've discussed with you. You think it is doable? Now you will become more confident after this? Do not forget to click on the submit button. We'll wait for a couple of more seconds to receive all your answers. Okay, fantastic. We've received 59% of people say very confident, which is great. 35% say confident. 6% say somewhat confident. Okay, that's great. And nobody is not confident. So I'm really happy that we are moving towards being a little more confident now. And I'm glad to see कि इतने सारे लोगों में थोड़ा सा confidence आया ये tips देखकर. So please use these tips. You can tell it, you can share it with your friends who have diabetes, your family relatives who have diabetes. Tell them about it so that taking medications does not become an option for them and it becomes an important mandatory thing for their diabetes management plan. Okay, now we move on ahead to understand that how should we reduce any kind of complications or risk associated with it. ठीक है, तो ये तो हो गए दवाई लेने की बात. अब अगर ये डायबिटीज से हमें कोई भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होती है तो उसका रिस्क हमें फ्यूचर में कैसे रिड्यूस करना है इसके बारे में हम बात करेंगे. Wherein we'll start with a story of Mr. Raman. Okay, so this Mr. Raman is our very own patient. He is a 50-year-old patient. एंड ये हमारे प्रोग्राम पर जब आए थे तो उनको काफी दो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस थे डायबिटीज के साथ. एक उनको हार्ट डिजीज था, दूसरा उनको फुट अल्सर्स था. एंड वी नोटिस्ड कि जो भी मतलब यू नो व्हेन ही अंडरस्टूड अबाउट डायबिटीज उन्होंने दवाई वगैरह लेना चालू किया टू रिड्यूस हिज शुगर लेवल्स. लेकिन वो कई बार अपनी दवाई लेना भूल जाते थे या कई बार वो 2-3 दिनों का डोज साथ में ले लेते थे या दिन भर का सारी दवाई एक ही साथ में रात में खा लेते थे. ऐसा वो कई बार करते थे और इसके लिए उनके जो शुगर्स थे वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे और उनका जो कॉम्प्लिकेशंस था वो भी वर्स होता जा रहा था. Having heart disease, having foot ulcers with diabetes is of course not a pleasant feeling, right? So that was becoming very kind of a worse with time क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनके मेडिकेशन टेकिंग में थी, उनके रिड्यूसिंग रिस्क में थी. He was not able to control the risk of his diabetes management. तो हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि वो मीठा खाना अवॉइड नहीं कर पा रहे थे, वो डॉक्टर के हिसाब से वॉकिंग वगैरह डेली नहीं कर पा रहे थे. एंड ही वाज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस एंटायर सीन. एंड दैट इज व्हेन ही एनरोल्ड इन आवर प्रोग्राम एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंड विद हिम. सो बिफोर वी विल सी दैट व्हाट हैपेंस विद हिम, लेट अस टेल यू इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी कि एग्जैक्टली क्या हुआ. तो हमने इसी तरीके से उनको समझाया था कि ये सबसे कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज के. These are basic long-term complications. The very first one is heart disease, जो कि हम cardiovascular disease बोलते हैं कि कोई भी तरीके की हार्ट से संबंधी डिजीज को हार्ट डिजीज कहा जाता है. जो दूसरा कॉमन डिजीज है दैट इज किडनी डैमेज या नेफ्रोपैथी. किडनी में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज से तो उसको नेफ्रोपैथी कहा जाता है. और डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं है तो किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं. अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो आपकी आंखें डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं, आई डैमेज, व्हिच इज कॉल्ड एज रेटिनोपैथी. बिकॉज अल्टीमेटली जो ब्लड शुगर होता है वो ब्लड आपके पूरे बॉडी में रन कर रहा है, राइट? वो शुगर वाला ब्लड, व्हेन योर शुगर इज हाई, दैट ब्लड इज रनिंग इन ऑल योर बॉडी पार्ट्स एंड दैट्स द रीजन इट्स अफेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल योर बॉडी पार्ट्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कैसे करें. राइट, नर्व डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं, जैसे पैर में झंझनाहट होना, जलन होना, हाथ पैर में टिंगलिंग सेंसेशन होना, न्यूरोपैथी कहते हैं जिसे, या स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं. लिम्ब एम्प्यूटेशन यानी कि पैर में लग जाना और पता ना चलना जिस वजह से बाद में कोई भी तरीके का सर्जरी वगैरह करवाना, या गम डिजीज हो जाना. ये सारी चीज बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज के. तो अगर डायबिटीज कंट्रोल में ना हो तो ये होने के चांसेस हमें होते हैं. So how should we reduce the risk of these, all these things that we discussed? I am going to give you 10 tips to reduce ये सारे risk. कि आपको कैसे reduce करना है, इस बार मैं आपको 10 अलग अलग तरीके बताने वाली हूँ. Please make a note of it
or if you want you can take a picture of it, but do keep it in your mind so that you don't get into any of these complications, and even if you have any of these complications you are in a position to maintain it. ठीक है, सबसे पहला जो टिप है, फॉलो अ हेल्दी ईटिंग प्लान, जिसमें आपकी हेल्थ कोच आपकी ऑलरेडी मदद कर रही होगी कि एक हेल्दी ईटिंग प्लान फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आपका जो कंडीशन है उस हिसाब से आपको कब क्या खाना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडमली कोई भी डाइट चार्ट फॉलो करने से अच्छा talk to your doctor, talk to your health coach about it, and pick up foods that are good for you and avoid eating foods which are not that great for you. Okay, so following a healthy eating plan is very very important. एक छोटी सी टिप यहाँ पर ये भी है कि जो ऐसे फूड्स है जिससे कि आपका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे मीठा खाना, तला हुआ खाना वगैरह, वो खाइए, ऐसा नहीं कि नहीं खाना है, लेकिन आपके शुगर के हिसाब से खाइए। अगर आपका शुगर कंट्रोल्ड है तो आपने अगर एक आधा पीस इधर उधर खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है तो वो एक पीस भी आपके लिए हार्मफुल होगा। तो पहले आप अपनी शुगर को कंट्रोल करिए और फिर बराबर पोर्शन साइज में फॉलो अ हेल्दी ईटिंग प्लान। सेकंड टिप इज बी फिजिकली एक्टिव। आप जितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा आपके ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में रखने में। और जो एडीए है, जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, वो गाइडलाइंस देते हैं कि 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट इन द एंटायर वीक। 30 मिनट दिन भर में, हफ्ते भर में 5 बार, दैट इज अबाउट 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी 5 days a week is more than enough, which is not like big। आपको 2-2 घंटे का वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डायबिटीज मैनेज करने के लिए 30 मिनट्स 40 मिनट्स की एक्सरसाइज करना या वॉकिंग करना या जो आपके लिए सूटेबल है वो एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज लूज सम अमाउंट ऑफ वेट। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको कम से कम 5 से 7% वेट अपना रिड्यूस करना जरूरी है। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आप ओवरवेट है कि नहीं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट? टॉक टू योर हेल्थ कोच। उनको बताइए कि मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है, मैं कौन से रेंज में आता हूँ, मैं अंडर वेट हूँ, ओवरवेट हूँ, बराबर हूँ। टॉक टू हर अबाउट इट एंड देन आफ्टर दैट शी विल गाइड यू कि आपके ओवरवेट के हिसाब से आपको कितना वेट रिड्यूस करने की जरूरत है और आप वो कैसे कर सकते हैं। तो ओवरवेट रहकर डायबिटीज मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, इससे बेटर रहेगा कि आप अपना वेट रिड्यूस कर लीजिए। ओके, मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज द फोर्थ टिप, दैट इज मैनेज योर एबीसीज। एबीसीज का मतलब है, जो ए का फुल फॉर्म है वो है A1C टेस्ट, जो हम HbA1c टेस्ट करते हैं, जो कि 3 महीने का ब्लड शुगर एवरेज होता है। उसको टाइम टू टाइम मैनेज करते रहेंगे अगर आप, तो ऑटोमेटिकली आपका कोई भी रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। तो HbA1c टेस्ट मैनेज करना बहुत बहुत जरूरी है। सेकेंडली, बी इज योर ब्लड प्रेशर। यूजुअली जिनको डायबिटीज होती है उनका ब्लड प्रेशर अफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपके ब्लड प्रेशर को भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रखिए। अगर आपको डायबिटीज है, डोंट वेट फॉर गेटिंग इनटू हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज के साथ साथ ही आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। ओके, एंड आपका टारगेट 140-90 के आसपास होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। यू कैन ऑल्सो डिस्कस योर डॉक्टर अबाउट दीज टारगेट्स। The C in ABC is control your cholesterol levels। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो आप उसको कंट्रोल करिए। जैसे कि आपको कोई भी तरीके की लिपिड प्रोफाइल वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, हाई लिपिड प्रोफाइल होना या आपको कोई भी तरीके की ट्राइग्लिसराइड इशू वगैरह होना, वो सब ना हो, इसके लिए आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करिए। ओके, S in the ABCs is stop smoking, and if you you are not smoking already, don't start at all। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, क्योंकि स्मोकिंग से हार्ट रिलेटेड डिजीज वगैरह होना बढ़ जाता है, लंग रिलेटेड डिजीज होना वगैरह बढ़ जाता है। तो इसके लिए अगर आपने ये एबीसीज, जो कि A1C, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड स्मोकिंग, ये 4 चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो ऑटोमेटिकली आपके कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। ओके, देन मूविंग ऑन टू द फिफ्थ टिप, दैट इज टेकिंग योर मेडिकेशंस टाइमली। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, टॉक टू योर डॉक्टर, टॉक टू योर हेल्थ कोच एंड आइडेंटिफाई कि वो दवाई अगर आपने नहीं ली तो क्या कर सकते हैं आप। अदरवाइज ट्राई एंड टेक योर मेडिकेशंस ऑन टाइम। Sixth tip for you is schedule a diabetes health checkup for you at least 2 times a year. That's like the minimum. You should not leave everything and मतलब बस दवाई ले रहे हैं, अपना काम चल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पता रखना जरूरी है कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है।
तो एटलीस्ट 2 times a year plan a diabetes complete checkup for you. Okay. Also, seventh very important tip is brush your teeth at least twice a day. You must be wondering कि डायबिटीज को मैनेज करने के लिए मैं ये क्यों बता रही हूँ, राइट? डायबिटीज को मैनेज करने के लिए ये नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हाई डायबिटीज, जब आपके शुगर्स हाई होते हैं, हाई ब्लड शुगर्स होता है, इसके वजह से ना कई बार ओरल हाइजीन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली जब आपका ब्लड शुगर हाई रहता है तो गम्स में इशू होना या ब्लीडिंग गम्स होना या देयर सम प्रॉब्लम विथ योर टीथ, विथ योर ओरल हाइजीन, ये होने की बहुत चांसेस है, कैविटीज वगैरह होना, क्योंकि आपके शुगर्स कंटिन्यूसली हाई है. इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर ओरल हेल्थ ऑल्सो and brush your teeth etc. so that you don't have any issues with when it comes to oral hygiene. Also, you can schedule a dental examination कम से कम साल में एक बार दो बार, so that you are sure कि आपके teeth वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है. Also, the eighth and a very important tip again, which I tell to a lot of my patients, especially अगर आपके sugars under control नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके nerves affect हो जाते हैं. तो please pay attention to your foot. अगर आपके पैर में कभी भी कोई कट आया है या आपके पैर में कोई चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, तो टेक केयर ऑफ इट एंड उसको ठीक कर दीजिए इमीडिएटली, क्योंकि यूजुअली जिनको डायबिटीज होता है ना, उनकी चोट को भरने में थोड़ा सा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है नॉर्मल लोगों से. तो कभी कभी आप नोटिस भी नहीं करेंगे कि आपको चोट लगी है, तो ये नोटिस करना बहुत जरूरी है. पे अटेंशन टू योर फुट, पे अटेंशन कि आपको कहीं चोट लगी है क्या, कोई कट आया है क्या, अगर है तो उसको ठीक करवा लीजिए, जैसे कि कोई भी तरीके का लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ना हो. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज अल्कोहल. अल्कोहल भी डायबिटीज को काफी पुश करता है. अल्कोहल आपको डिहाइड्रेट भी कर देता है, सो इट हैज अ लॉट ऑफ कॉन्स एज कंपेयर टू प्रॉस. तो अगर आप रेगुलर अल्कोहल ड्रिंकर नहीं है, सुपर मत स्टार्ट करिए, और अगर आप हैं तो प्लीज ट्राई एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड द क्वांटिटी. आप जितना फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी को कम रखेंगे उतना कम आपको डायबिटीज पे उसका असर दिखेगा, और वरना अल्कोहल यूजुअली डायबिटीज को काफी इफेक्ट करता है. 10th and the last and very important tip from my end is take your stress seriously. Usually stress management एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग अवॉइड करते हैं, बहुत इजीली अवॉइड हो जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी चीज है, बिकॉज हमें उसके सिम्टम्स नहीं दिखते या हमारे पास कोई मशीन नहीं है चेक करने के लिए कि हम कितने स्ट्रेस्ड हैं, राइट? तो हम यूजुअली उसको अवॉइड करते हैं, बट ऐसा मत होने दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स भी आपके ब्लड शुगर्स को काफी काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं. को बहुत सारी ऐसी स्टडीज है जो कि हमें दिखाती है कि आपका खाना पीना, आपका एक्सरसाइज, आपकी दवाइयां सब बराबर हैं, बट जस्ट बिकॉज यू आर ओवर स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ व्हाटएवर XYZ रीजन, आपके ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहे. सो टेक योर स्ट्रेस सीरियसली. जैसे as simple as set targets for you, prioritize your tasks, be positive. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि आप काफी स्ट्रेस्ड है कोई चीज की वजह से, उस चीज को थोड़ी देर के लिए उधर ही बंद कर दीजिए. Go for a walk, maybe listen to your favorite music, take some breaks in your daily routine. Need not, मतलब these days it has become very very obvious कि 24 घंटा काम करते रहो तो अच्छा है. No, it is not important. ठीक से स्ट्रेस मैनेज करना, अच्छी तरीके से सोना, अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेना. स्लीप क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट हैव दैट, डायबिटीज मैनेजमेंट बिकम्स अ प्रॉब्लम. So make sure that your stress is very well managed and your sleep quality is also not compromised. Have a good deep sleep so that you are ready and to take up the next day, the task for the next day, right? So these are a couple of important tips that I wanted to share with you. ये 10 tips जो मैंने आपको दी है, एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगी, did you find these tips useful? Are you a little more confident about managing diabetes? Are you all with me? Can I get a yes from all of you on the chat box so that I know that आप लोग भी ये tips समझ रहे हैं and you find it useful? Can I get a yes from all of you on the chat box? Okay, perfect. I have started getting a couple of yeses. Okay, great. So I am getting a lot of yeses. So that's nice, which means कि आप ये tips समझ रहे हैं. So please take these tips away from here. Talk to it about आपके जो भी आपके friends हैं, family members हैं, जो भी आपको डायबिटीज मैनेज करने में मदद करते हैं, talk to them about it
so that you are well versed with managing diabetes and it is no more a problem for you. Okay, it becomes cakewalk for you. Coming to our Mr. Raman again, एंड इस तरीके से ये सारी चीजें उन्हें भी समझाई गई, ये सारे टिप्स उनको भी दिए गए और उन्होंने ये सारी चीजें यूज की, जिसके वजह से हमने उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि किस तरीके से हम उनके ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करेंगे, कैसे कि उनकी दवाई मिस ना हो, कैसे वो अपने फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखें. हमने एक पूरा प्लान चॉक आउट किया था उनके लिए. एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम वी अंडरस्टूड दैट मिस्टर रामन के जो ब्लड शुगर्स थे वो काफी कंट्रोल हो गए. उनके जो डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज थे, जैसे कि उनका हार्ट डिजीज, उनके फुट अल्सर्स, वो भी काफी हद तक कम हो गए. एंड जिसकी वजह से उनका डायबिटीज मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा हो गया. नाउ ही इज मोर कॉन्फिडेंट अबाउट मैनेजिंग डायबिटीज. इट इज नॉट अ स्ट्रेसफुल थिंग फॉर हिम. ही इज नॉट डिप्रेस्ड एनीमोर एंड ही इज हैप्पी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज डायबिटीज. सो इट हैज एक्चुअली बिकम अ केक वॉक फॉर हिम. तो वो अभी भी हमारे साथ प्रोग्राम में है, 6 महीने से ऊपर हो गया उनको हमारे साथ प्रोग्राम में, एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड ही इज मैनेजिंग हिज डायबिटीज वंडरफुल. सो दिस वाज अ स्मॉल स्टोरी जो कि हम एक्चुअली कर रहे हैं, और किस तरीके से हमने ऐसे एक पेशेंट को मदद की, उनके जो भी शॉर्ट कमिंग्स थे उसको ओवरकम करके अब उनके डायबिटीज को अच्छे से मैनेज करने में. ओके, सो विद दिस आई एम गोइंग टू टेक यू अहेड एंड टेल यू कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो उससे ज्यादा कन्वीनियंट तरीका आपका डायबिटीज मैनेज करने के लिए और कोई नहीं. क्योंकि जो आपका स्मार्टफोन है, इफ यू हैव योर वेल्दी केयर ऐप ऑन द फोन, actually everything is available on the wealthy care app. You don't require anything else once you are well versed on how to use the app. Okay, along with your doctor visits, of course. Doctor visits will continue so that you are sure about the medications that you're taking, or you should continue. Okay, now coming to the AccuCheck active users. तो जो हमारे AccuCheck active users है, यानी कि आप लोग, इनके लिए डायबिटीज डूएबल है. Why is it doable? क्योंकि वेल्दी और AccuCheck एक्टिव साथ में आकर आपको बहुत इजी करके देता है डायबिटीज मैनेजमेंट. You have a diabetes coach all time available. You can ask the diabetes coach. You can act on a couple of easy tips that your health coach gives you. जो भी नॉलेज और स्किल्स आपको मिलते हैं ऐप से, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं. Which all of this will together help you achieve your health goal over time, right? इसके लिए diabetes becomes doable for most of our users. And कैसे मदद करता है डायबिटीज मैनेजमेंट ऐप? सबसे ज्यादा मदद आपको इसमें जो है वो हेल्थ कोच करती है हैंड होल्डिंग में. यानी कि आपको एक एक चीज बताना कि आपके लिए जो हेल्थ गोल है, इसके लिए आपको कौन सी चीज किस तरीके से करना जरूरी है. ये चीजों को मेंटेन करने में, आपको सजेशन देने में, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन कराने में काफी मदद मिलती है इस ऐप के थ्रू. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस ऐप पे आपको जो भी सजेशंस मिलते हैं वो साइंस बेस्ड सजेशंस है. दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज वी थिंक दिस इज राइट, इट इज बिकॉज साइंस टेल्स दैट दिस इज राइट. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वी डोंट नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स नॉट. तो कम से कम ऐसे प्लेटफॉर्म में यू आर श्योर अबाउट व्हाट एवर यू आर रीडिंग एंड यू कैन एक्चुअली फॉलो इट विदाउट एनी सेकंड थॉट्स. With this, I'm going to show you a video right now, जो कि वेल्दी केयर ऐप का एक छोटा सा समरी है जो कि आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. Please see the video and let me know how did you find the video. So I'm going to show you a small summary of what exactly वेल्दी केयर ऐप offers you. क्या आपको मिलता है वेल्दी केयर ऐप से? Okay, fantastic. This is what we had to show you. ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि आपको बताना हम चाहते थे कि किस तरीके से ये ऐप में क्या क्या अवेलेबल है एंड हाउ द फीचर्स हेल्प यू मैनेज योर डायबिटीज.
I will quickly take you through the features of the app जो कि आप already use कर रहे हैं. So there is nothing new. But जो भी मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको basically ये समझाऊंगी कि वो feature में से आप सबसे best क्या use कर सकते हैं. Okay? So the very first feature that we are going to take care of the Wealthy Care app is the profile and targets. ये सबसे पहला feature है जो कि हम ध्यान से देखने वाले हैं, क्योंकि जो प्रोफाइल है ये आपको पर्सनलाइज करने में मदद करती है आपके पूरे प्रोग्राम को, और जो टारगेट्स दिए गए हैं आपको आपके ऐप में ये भी पर्सनलाइज्ड है आपके लिए. आपको कितनी कैलोरीज खानी है, कितनी बर्न करनी है, कितनी कंज्यूम करनी है, कितना वेट लूज करना है, ये सारे टारगेट्स पर्सनलाइज्ड होते हैं आपके लिए. तो प्रोफाइल एंड टारगेट्स हेल्प यू पर्सनलाइज योर गोल्स. ओके. द सेकंड फीचर इज डेली गोल्स. तो जो भी आपको डेली गोल्स दिखाई पड़ते हैं ऐप पर, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द ऐप to help you manage your diabetes in an overall systematic manner. It tells you कि आप अभी तक कहाँ पहुंचे और अब आपको क्या करना है next और improve होने के लिए. The next and very important feature is lessons. हमारे ऐप में एक सेक्शन है जिसको जर्नी सेक्शन कहा जाता है. वहां पर you have a lot of lessons in the form of audios, videos, quiz etc. जो कि आपको आपके डायबिटीज मैनेज करने में काफी मदद करता है. So you can go through those audio lessons and video lessons and understand about how to manage your diabetes as a whole. Very important again, there's a feature called logs. Logging is a very important feature जहाँ पे आपको आपके सारी चीजें लॉग करने का ऑप्शन है. So right from your blood pressure, blood sugar, weight, water, activity, meals, ये सारी चीजें आप ऐप पर लॉग कर सकते हैं. जैसे ही आप ऐप पर लॉग करते हैं, हमारी डिजिटल हेल्थ कोच है जिसका नाम है कैरी, वो आपको 24/7 फीडबैक देती है आपके लॉग्स के ऊपर. So logging is very important to track your blood sugars etc. on a timely basis. Another very important thing is diary. जो भी आप लॉग करते हैं वो डायरी में जाकर स्टोर हो जाता है. तो अगर आपको कुछ समय बाद जाकर कंपेयर करना हो कि आप कितने इंप्रूव हुए हैं या आपका क्या प्रोग्रेस रहा है, तो आप डायरी में जाकर सारे लॉग्स चेक कर सकते हैं. Another very important thing is reminders. तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि कुछ लोग अपनी दवाई लेना भूल जाते हैं, you can use this feature to not forget taking medications. आप ऐप पर जाकर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कौन से टाइम पर कौन सी दवाई लेनी है, और ऐप आपको टाइम टू टाइम याद दिलाता रहेगा so that you don't forget taking that particular medication. ओके. एंड ये सिर्फ दवाई के लिए नहीं है, कोई भी चीज के लिए आप ये रिमाइंडर यूज कर सकते हैं. ओके. Then comes a very important feature which is magazines. We have a lot of magazine articles up on the app जो कि हमारे experts ने लिखा है, which you can go through and understand on how to manage diabetes and get a couple of tips and tricks to manage it better. Okay, so these are basic features जो कि आप already जानते होंगे, I'm sure, about the app. On the same lines, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे ऐप को यूज करते हुए more than 45,000 पेशेंट्स ने हमें इस तरीके के फीडबैक्स दिए हैं जो कि ऐप को यूज कर काफी खुश हैं, and they have some great experience to share with us, and they have seen some great results, and that's the reason they recommend us to a lot of their colleagues and their friends and their families. तो ये कुछ ही कुछ स्क्रीनशॉट्स थे जो हम आपको दिखा सकते थे. Otherwise we have a lot more which we cannot show you here, right? So we are very proud to show this experience with you. ऑल्सो ये जो ऐप है ये आपको ये सारी चीजों में भी मदद करता है जब आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए, या समझिए कोई फास्ट है या कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट, या कोई समझिए शादी, पार्टी, फंक्शन, बर्थडेज वगैरह है, या अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे समय में आपको आपके ब्लड शुगर्स कैसे कंट्रोल करने हैं ये भी आपको ये ऐप अच्छे से समझाता है. ये ऐप में आपको सिर्फ हेल्थ कोच नहीं मिलती. हेल्थ कोच इज डेफिनेटली लाइक अ बून इन डिस्गाइज, but definitely उसके साथ आपको अलग चीजें भी मिलती है. We have an entire care team for you in the app. One is of course your human health coach. Second is your digital health coach Carrie, जिनसे आप already chat करते होंगे ऐप पर. जितनी बार आप लॉग करते हैं वो आपकी मदद करती हैं. You can also put a caregiver on the app जो कि आपके friends, relatives, family members कोई भी हो सकते हैं, आप उनको भी ऐप पर डाल सकते हैं. And of course your doctors can also be a part of the app. So it's a complete care team to back you up to manage your diabetes in a much better manner. I'm sure all of you are already on this 21-day free trial, जो कि आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं. आपकी हेल्थ कोच आपको कई सारे रेसिपीज, टिप्स वगैरह दे रही होगी.
गुड बिहेवियर्स कैसे लाएं उसके बारे में छोटी छोटी चेंजेस बता रही होगी. एंड आई एम श्योर यू आर यूजिंग द 21-day फ्री ट्रायल. If you're using, great. If not, please use it, because this is the time wherein you can understand कि ये ऐप आपको actually offer क्या करता है और आप उसको actually experience कर सकते हैं. बट जस्ट टू टेल यू ये जो 21 डेज में हम करते हैं, ये छोटा सा एग्जाम्पल होता है, एक छोटा सा ट्रेलर होता है एक बहुत बड़ी मूवी को, बिकॉज वी कैन नॉट शो यू एवरीथिंग इन द 21 days, राइट? सो इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग दैट वी कैन शो यू इन द 21 days. And once you are happy and you've done the 21 days, or even before completing the 21 days, आप अपने हेल्थ गोल के हिसाब से अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं. तो अगर आपका कोई छोटा हेल्थ गोल है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू लूज वेट, you can go for the wealthy basic plan, which is a 1 month plan, जो कि सिर्फ 399 रुपीज पर मंथ का प्लान है. अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि अगर आपको आपके शुगर्स इंप्रूव करने हैं, तो यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक अ 4 month प्लान, विच इज द वेल्दी प्रो प्लान, जो कि 300 रुपीज पर मंथ है. And if you want to have like a long term plan, you want to have a difference in your lifestyle, आपको पूरे तरीके से अपना well-being change करना है, then you can go for something which is a even longer plan, which is Wealthy Plus, which is a 12-month plan, जो कि 125 rupees per month cost करता है. So this is how you can upgrade your plan according to whatever is your current health goal. Okay? As you go ahead in the program, आप जितना ज्यादा टाइम रहते हैं प्रोग्राम में, उतने इंटरैक्शंस आपकी हेल्थ कोच के साथ बढ़ जाती है. So the only difference that you see is the amount of time you spend with your health coach and the amount of time you spend on the app. So the more you stay on the app, the more you interact with the health coach, वो उतना ज्यादा आपको गाइडेंस दे पाती है और उतना ज्यादा आप उसको फॉलो करके देख पाते हैं कि आपके ऊपर क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, what's working for you and what not. So according to your health goals, you can actually choose between a 1 month, a 4 month, or a 12-month plan. And towards the end, I would, very proudly present in front of you our groundbreaking results, जो कि हमने पिछले कुछ समय में कॉज किया है हमारे पेशेंट्स के साथ. हमने बहुत सारे HbA1c रिडक्शंस देखे हैं. HbA1c यानी कि 3 महीने के ब्लड शुगर एवरेज का रिडक्शन देखा है हमने अपने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ. वेट लॉस देखा है हमने अपने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ. एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू हेल्प यू. And we are also backed by big organizations like ADA, American Diabetes Association, जो कि हमें और हमारे results को back करती है, so that we can help more and more people bring this kind of a change in their lives. Okay, on this note, I come towards the end of today's masterclass, and I would just like to tell you कि play an active role in managing your diabetes. Do not think कि ठीक है डायबिटीज है अब क्या कर सकते हैं, forget it. No, it's not that. Diabetes is absolutely doable. बस आपको सही गाइडेंस की जरूरत है और सही तरीके से कब क्या करना है ये जानकारी की जरूरत है. Once you do it, absolutely diabetes is in your hands. So it is doable. Okay. So thank you so much. And okay, before we close, I'll quickly take up questions which I can see on the chat box. So, can we take a couple of questions, Rituja? Yes, Sakshi, indeed, it was a great session. All the audience enjoyed the entire session. So, I think there are some questions which are frequently asked. Yeah. The first question which is asked is, why is it essential to take medications on a regular basis, even when the sugars are under control? Okay. So, I think this is a very, very important question that you have asked. Good, जिसने भी पूछा है बहुत अच्छी बात है. तो अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो ये बहुत अच्छी बात है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट यू शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आया कैसे था. दवाई लेने की वजह से आया था, एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने की वजह से आया था, राइट? तो अगर आपने दवाई लेना और लाइफस्टाइल फॉलो करना आपने बंद कर दिया, तो देयर इज अ 100% चांस कि आपका शुगर फिर से ऊपर चला जाएगा, राइट? सो इफ योर ब्लड शुगर्स आर अंडर कंट्रोल एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि अब आपके शुगर्स कंट्रोल में है and you don't require taking medications, go and talk to your doctor. Let your doctor take this decision. बहुत सारे डॉक्टर्स ये बताते हैं कि अब आपके शुगर्स परफेक्टली नॉर्मल है, अब आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है. बट डोंट डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ. अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि दवाई अभी भी लीजिए, तो वो कोई वजह से बोला होगा, सो दैट यू डोंट गेट इनटू एनी अदर कॉम्प्लिकेशंस. इसके लिए दवाई बंद करना इज नॉट अ सोल्यूशन व्हेन योर डायबिटीज इज अंडर कंट्रोल अनलेस योर डॉक्टर सेज इट.
If your doctor is saying it, great, go ahead and stop taking. But until then, don't do it. I hope that answers, Ritija. Yes, yes, Sakshi. There was one more question which was Yeah. related to adherence. So there are Okay. few patients who want to know that, medication adherence, how can they improve their adherence to medications? ओके ग्रेट सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन जहां तक मेडिकेशन अध्ययरेंस की बात है यानी कि समय से सही तरीके से दवाई लेना इसकी बात है ये इम्प्रूव करने के मैंने आपको कुछ टिप्स ऑलरेडी दिए थे बट मैं आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देती हूँ सबसे पहला ये कि आप अगर कभी भी दवाई मिस करते हैं या आप कभी भी दवाई लेना भूल जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना जो कि उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि यार अब तो भूल गए अब छोड़ो अब दवाई डिसकंटिन्यू कर देते हैं सो डोंट डू दिस अगर आपने आज दवाई लेना भूल गए कोई दिक्कत नहीं आप कल से फिर से शुरू करिए डोंट गेट इन टू दैट पैसिव मोड कि ठीक है मुझे दवाई नहीं लेना है आई कैन स्टॉप इट जस्ट बिकॉज मैंने कल नहीं लिया मेरा शुगर ठीक ही था सो लेट्स स्टॉप इट नो डोंट डू दैट आप आज भूल गए कल से फिर से शुरू करिए ओके सो दैट्स द वेरी फर्स्ट टिप सेकेंडली जब भी आप दवाई लेते हैं तो जैसे मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए ध्यान कैसे रखना है दवाई लेने का सो पिक अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू यू pick up a pill box or maybe keep it near you whenever you want to take medications or maybe keep it stack it up with some habit जैसे कि आप भूले ना वो दवाई लेना so you can choose what suits you the best and you can take that medication or you can pick up that tip according to that medication okay थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज कि सेल्फ मेडिकेट मत करिए कभी भी खुद को कि अगर आपने आज सुबह की दवाई नहीं ली तो आपने सुबह शाम की दवाई साथ में रात में ले ली नो डोंट डू दैट अगर आपने 3 दिन दवाई नहीं ली तो आपने चौथे दिन सारी दवाइयां साथ में ले ली नो डोंट डू दैट अगर कभी भी आपने दवाई नहीं ली टॉक टू योर हेल्थ कोच टॉक टू योर डॉक्टर दे गिव यू अ सोल्यूशन सेल्फ मेडिकेट करना या खुद से दवाई खाना बंद करना इज नॉट अ ग्रेट थिंग डोंट डू दैट because ultimately medications are chemical compositions right they are chemical formulations अपने मन से चालू करना अपने मन से बंद करना बहुत अच्छी चीज नहीं होगी आपके बॉडी के लिए so these are 3 basic tips for medication adherence I hope this helps you any other questions Yes, Ritika? yes, Sakshi. These are the two major questions which were asked today. So Okay. you can give maybe some, suggestions for the patients to adhere to managing their diabetes. Sure, definitely. So I think the only thing that I would like to tell you is कि आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ दवाई खाना या सिर्फ डाइट फॉलो करना सिर्फ एक्सरसाइज करना कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती है डायबिटीज मैनेजमेंट इन इटसेल्फ इज अ टीम वर्क आपको मैंने जो 6 पिलर्स बताए थे डायबिटीज के वो 6 के 6 को साथ में करेंगे तभी डायबिटीज मैनेज होगा सो ये चीज को ध्यान रखिए बहुत से पेशेंट्स बताते हैं मैं अपना डाइट तो ले रहा हूँ दवाई की क्या जरूरत या मैं दवाई ले रहा हूँ मैं कुछ भी खाऊंगा या मैंने आज बहुत एक्सरसाइज कर ली नाउ लेट अस सिट एंड ईट वॉट एवर आई वॉन्ट टू ईट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स सब चीज बराबर क्वांटिटी में हो तो ज्यादा बेटर है एंड ज्यादा डूएबल हो जाएगी आपके लिए डायबिटीज ओके सो दिस इज अ स्मॉल टिप टू ऑल ऑफ यू with this I can see a lot of more questions but I think we are already our time is up so you can actually ask these questions to your health coach जो कि आपकी पर्सनल हेल्थ कोच है आप उनसे इस बारे में पूछिए अगर आपको प्रोग्राम से रिलेटेड भी कोई डाउट है क्वेरी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कौन सा प्लान कितने का है क्या है आप उनसे ये सारी चीजें पूछ सकते हैं दे विल हेल्प यू आउट ओके so with this I come towards the end of the session thank you so much for being there for being such a lovely and interactive audience it was great hosting you people hope to meet you soon in the next live masterclass thank you so much good evening everyone thank you